36th National Games here at Rajkot. We are coming to you from the Major Dhyan Chand hockey ground. Remember, it's a Sunday, but it doesn't matter as far as the players there in the center are concerned. It's a super morning. It's slightly hot and humid, but I think that's not going to worry these two sides. Haryana take on Jharkhand in the first of the two semi-finals. To the left of the picture frame, there in the all red, is the captain from Jharkhand, led by Nikki Pradhan, and on the right is the international, the India captain Savita Punia. She is the captain. She is also the goalkeeper out here. The two umpires to the left of the picture frame, very easy to identify. The taller of the two in her red shoes is Durga Devi from Delhi. She played for Himachal Pradesh, and that's the Haryana lineup. We'll talk about the second umpire, and that's the lineup for you. Savita, the captain and goalkeeper, Punya. Nisha, Monica, Mahima, Udita. You got Usha, that's the 11 I'm talking about. Then Shilpi Dabash, Navneet Kaur, Neha, Sonika, and Jyoti. With the others who will then be the substitutes, Sharmila Devi, Rani Rampal. Rani Rampal, the India earlier captain, is not in the first playing 11. Gurmail Kaur. And along with her, Jaspreet and Swati. That's the Jharkhand lineup. Good morning to you, Dinesh. नमस्कार मिलिंद आपको और डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से हमसे जुड़े सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। यहाँ झारखंड की टीम आपकी स्क्रीन पर है। सोनल मिंज, सलीमा टेटे, दीपिका सोरेंग, निक्की प्रधान, सुभाषी हेम्ब्रॉन, रूपनी कुमारी, महिमा टेटे, संगीता कुमारी, एल्ब्यू रानी टोप्पो, सिमता मिंज, ब्यूटी डुंगडुंग और कोच हैं बिगन सॉय। जबकि बेंच पर हैं बाला होरो, काजल बारा, बिनिमा धन, प्रमिला सोरेंग, दीप्ति कुल्लू, अंजलि बिंजिया और रजनी करकेट्टा। Yes, this will be a cracker of the game. As I said, the two umpires there to the left of the picture frame is Durga Devi from Delhi. She comes from Himachal Pradesh. She's a teacher of physical education. And to the right, just going off your picture frame there, right in the center is the girl from Mizoram, is Katie Lalim Puli. She's studying for a master's. That's the team in all blue, the traditional India colors, the Haryana side. Dinesh, talking of Haryana, not only hockey, although they've got 7 international players, 7 international players इस side में हैं, लेकिन हरियाणा क्या state है? Wrestling, this is of course the famous. This is the famous. You can see her with the huge smile, the right smile on her face, and she is the India captain at the Commonwealth Games. Savita Punya, the captain and the goalkeeper. तो हम बात कर रहे थे हरियाणा का. This of course is the side from Jharkhand. That smile, जो हंसी उनके चेहरे पे है, मेरे हिसाब से शायद दर्शाता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है. तो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ हॉकी लेकिन रेसलिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग में भी वो अच्छे हैं. और कोई स्पोर्ट मैंने मिस आउट किया तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इट्स अ वंडरफुल स्टेट विद सो मच ऑफ स्पोर्टिंग ग्लोरी. मिलिंद बिल्कुल सही कहा आपने। इन्हीं टूर्नामेंट के दौरान एक दिन मैंने कहा था कि हरियाणा नर्सरी है, खेल चाहे जो भी हो हमेशा कोशिश उनकी रहती है। और यहाँ पर ये झारखंड की गोलकीपर सोनल मिंज 1 नंबर की जर्सी में कई बेहतरीन बचाव मिलिंद इन्होंने किए हैं अपनी टीम के लिए। निश्चित रूप से सविता पूनिया की तुलना हम इनसे करें या ना करें, लेकिन मिलिंद हमने अभी देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में कि लीग मैचेस में टीमों ने जिस तरह से खेला, उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में जो इनका खेल था वो बिल्कुल बदला हुआ था। देखिए दिनेश, अगर हम बात करेंगे इस मैच की, नई मैच है, नया दिन है, तो पहले जो हो चुका है उसके हम बात नहीं कर सकते हैं. क्योंकि मैं अभी जो उनके मैनेजर है, जो झारखंड के मैनेजर है, उनसे मैं बात कर रहा था. एंड द मैनेजर टोल्ड मी, दैट्स मनोज कुमार प्रसाद, दैट दिस ईयर इन द सीनियर नेशनल्स, इन द सीनियर इवेंट, Jharkhand beat Haryana in the senior team, and likewise in the sub juniors and the juniors they beat Haryana. So there's so much of talent. And talking of Jharkhand, there's a village called Karnagudi village, जहाँ की लोक संख्या सिर्फ 1600 है, और उस 1600 में से इस इंटरनेशनल साइड में 6 प्लेयर्स आते हैं. वो कौन प्लेयर्स हैं? संगीता, द्युति, दीपिका, परमिता और काजल और दीप्ति. तो कहने का मतलब है कि एक छोटा सा गांव, विलेज, गांव भी नहीं, 1600 की लोक संख्या है पॉपुलेशन, एंड 6 प्लेयर्स आर कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम देयर. It's called the Simdiga district,
एंड ऑल्सो कुंती डिस्ट्रिक्ट, ये दो झारखंड में हैं, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट और कुंती डिस्ट्रिक्ट। लेकिन महत्व की बात यह है कि एक 1600 के विलेज में से 6 इंटरनेशनल प्लेयर्स या 6 प्लेयर्स इस साइड में आज खेल रहे हैं। मेरे को बताओ, बम्बई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, वहाँ से शायद एक इतनी बड़ी लोक संख्या और 6 प्लेयर नहीं आते होंगे। मिलिंद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। वास्तव में सोचने की बात है। और जैसे कि खेलों की विकास की बात यदि हम मिलिंद करें, तो हॉकी में जो आज हम स्तर देख रहे हैं बढ़ता हुआ एक बार फिर से, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, और विशेषकर जबकि मुख्य अतिथि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं मिलिंद, यदि हम खेलों का स्तर बढ़ते हुए देखें तो सामूहिक प्रयास हैं। जब एक गांव से 6 बच्चे निकल सकते हैं राष्ट्रीय टीम के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला भविष्य हमारा बहुत ही अच्छा है। तो इसके प्रयास के लिए सरकारें कोशिश कर रही हैं, और व्यक्तिगत रूप से कुछ लीजेंड्स जो रिटायर हो चुके हैं। तो ये है भोलानाथ सिंह, जिनके साथ इंट्रोडक्शन हो रही है। तो ये एक ऑफिशियल है जी, अपने हॉकी फेडरेशन के। तो आप जो कह रहे थे, और ये फोटोग्राफ मेरे ख्याल से दोनों साइड के लिए कितना महत्व रखेगा। हम सारे फोटो निकालते हैं, और ये जो फोटोग्राफ है भोलानाथ सिंह के साथ में, तो ये प्लेयर्स के लिए कितना अहम रखेगा। सवाल ये होता है कि जब ये मैच सेमीफाइनल ख़त्म हो जाएगी तो कौन जीतेगा। लेकिन द होल कॉन्सेप्ट इज ऑफ दीज गेम्स इज टू गेट इंडिया टुगेदर। हम जुड़ रहे हैं, हम जुड़ रहे इंडिया को। एज वी on a wonderful Sunday morning, we're coming to you from the Major Dhyanchand Hockey Stadium out here, and this is the pattern। ये जो भाईचारा है, ये जो भाईचारा है, और आज एक बहुत बड़ा दिन है, आज ईद मिलाद है। तो हमारे सारे जो देश और विदेश में जो हमारे भाई बहनों हैं, उनको हमारी शुभेच्छा है ईद मिलाद के दिन में। लेकिन आज यहाँ पर ये झारखंड की टीम क्या एक अपसेट करेगी, मैं अगर कहूँ कि ना, तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम अच्छा हॉकी देखना चाहते हैं। और ये दिस इज द टीम, वॉच आउट फॉर देम। 7 इंटरनेशनल प्लेयर्स, कैन यू इमेजिन दिनेश, कैन यू इमेजिन ऑन वन प्लेटफॉर्म यू हैव गॉट 7 इंडिया प्लेयर्स। इससे ज़्यादा आपको क्या मिल सकता है। तो एक सितारों से सजी हरियाणा की टीम के विरुद्ध ऊंचे हौसलों के साथ झारखंड की टीम उतरेगी, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ पर दुर्गा देवी शुरुआत कर रही हैं, जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है इस मैच में, जो उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जैसा कि मिलिंद आप कह रहे थे, तो हॉकी का स्तर जो सुधर रहा है, जो हॉकी का विकास देश में हो रहा है, वे सामूहिक प्रयास का नतीजा है। और इस बीच खेल की शुरुआत हुई सेंटर लाइन से। यस, सो द रेड्स, हम जब रेड की बात करते हैं तो लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं रेड कलर में, ऑल रेड्स। This is the first of the semi-finals in the 36th national games here in Rajkot, a wonderful city in the state of Gujarat between Haryana and Jharkhand. For some of you who are watching a telecast in hockey, a very popular game, but some perhaps watching it for the first time, there are 4 quarters of 15 minutes each, with a 2-minute break after every quarter and a 10-minute break after the 2 quarters, carried there by Jharkhand. But the intention is very clear. शुरुआत से ही हमने अटैक देखा है झारखंड ने, and what they will have to do, I think, Dinesh, is from the very beginning make sure that they attack, because they know that Haryana is a very strong side. The moment you allow Haryana to get back into the Jharkhand half and closer to those the D or the striking circle as we call it, then it will be that much more difficult, because the combination of 7 international players is going to be very, very difficult for Jharkhand to hold on. This is what I like about Jharkhand. Look at that. They have taken possession of the ball in the first 2 minutes majority of the time, and if they continue to play this game, make sure that they are not tired. They are a very fit side, I can tell you that. I've seen a lot of Jharkhand. They are a very fit side. Ranchi is the capital, which has hosted the national games and so many other tournaments. But Dinesh, if Jharkhand can continue to hold this momentum, I think this will be a good hockey match. बिल्कुल मिलिंद, मैं सहमत हूँ। ये सबसे अच्छी रणनीति झारखंड के लिए होगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि हरियाणा की टीम 7 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सजी हुई, और आरंभिक क्षणों में जो आक्रमण झारखंड ने किए हैं और अपनी गोल पोस्ट से, अपनी डी से हरियाणा को दूर रखा है, ये एक बहुत अच्छी बात है।
दिनेश, अगर रानी रामपाल पहले प्लेइंग 11 में नहीं है, ये दर्शाता है कि कितनी स्ट्रांग हरियाणा की साइड। वो आएगी सब्स्टिट्यूट बोल के, बिल्कुल आएगी। उसने 12 फील्ड गोल्स किए हैं इस टूर्नामेंट में। एंड आई थिंक द very presence of Rani Rampal, the former India captain, in the bench itself goes to show how strong Haryana is as a women's hockey side. मिलिंद, कल्पना कीजिए हरियाणा के कोच की कि कितना आत्मविश्वास है उनमें। वे जानते हैं कि रानी रामपाल यदि ग्राउंड पर नहीं भी हैं तो भी टीम को इस मुकाबले में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर झारखंड की एक जो प्लेयर हैं हरियाणा के हाफ में 23 मीटर की लाइन के ऊपर गिरी हुई हैं, शायद चोट आई है उनको। Not a pleasant sight. कभी भी ये साइड अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन this is all a part of the game of hockey or any sport where you are enthusiastic. And remember, this is a very different day. All the hard work that Jharkhand has done in the earlier rounds, they beat Madhya Pradesh 4-2. They drew with Karnataka 3-all. That was an important game. They lost to Punjab 2-3 and beat Uttar Pradesh 6-1. What do you think, the quarterfinals, when they beat Uttar Pradesh 6-1, that must have given them so much of extra confidence? Remember, they drew 3-all, lost 2-3, but won 6-1. We'll watch the one. This is the one where, she's actually got a hamstring. She's got a hamstring injury there. God, that's the same leg where she's got a bandage. So it's not a push by the opponent player, but perhaps a hamstring injury. And that's not good sign, hamstring injury. जी विकास, सही कहा। किसी भी टीम के खिलाड़ी को शारीरिक रूप से कष्ट होना उनके आगे के खेल पर असर तो डालेगा ही, और जो शुरुआती 11 है उसको भी परेशानी हो सकती है। यहाँ हरियाणा का पहला आक्रमण शूटिंग सर्किल के अंदर से एक पहला प्रयास है ये हरियाणा की ओर से, जबकि पहले क्वार्टर का खेल लगभग 3 मिनट समाप्त हो चुका है। एक अच्छा प्रयास और अभी भी पोजीशन हरियाणा के पास, हिट इन हरियाणा को। Dinesh, can you imagine it took them 3 or 4 minutes to get into the striking circle, Haryana? Just goes to show how strong Jharkhand has decided to be. How strong they continue to be in the remaining 57 minutes is a different question. But out here, just 3 or 4 minutes it took Haryana to come to this position. That is the type of hockey that Jharkhand is playing. And the reason why I'm emphasizing is that Jharkhand is the underdog. 7 players international in Haryana. See, once again, this is class. This is wonderful hockey from Jharkhand. And Sunday morning को ये देखने में कितनी मजा आती है। बिल्कुल सही। किसी भी तरह से झारखंड की टीम के हौसले कम नज़र नहीं आते हैं ग्राउंड पर। जिस तरह से शुरुआती दौर से ही, वे शुरुआती समय से ही इस क्वार्टर के हरियाणा के हाफ में आक्रमण करने की कोशिश की है, मूव बनाए हैं। भले ही वे शूटिंग सर्किल में ना पहुंच सकी हों, लेकिन मूव तो बनाए हैं। और जैसा कि मिलिंद लगातार कहते रहे हैं, यही झारखंड के लिए अच्छी रणनीति होगी। जबकि 12 नंबर की जर्सी में हरियाणा की ओर से एक और आक्रमण करने की कोशिश की थी। 12 नंबर की जर्सी में थी शिल्पी दबास, अच्छी प्लेयर, जबकि 9 नंबर के साथ ही गुरमीत कौर भी उनके साथ थी। झारखंड को अपने ही हाफ में फ्री हिट मिली है, बैक पास के द्वारा शूटिंग सर्किल के सामने अपने ही साथी को गेंद दी। मिलिंद, यदि हम बात करें खेलों की, विशेषकर हॉकी की, तो हमारे कुछ प्लेयर्स जो लीजेंड हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में जिनका नाम है, एक नाम मुझे आता है धनराज पिल्लई का। महाराष्ट्र के खड़की में 1968 में जन्मे, आज भी हॉकी के स्तर में सुधार में लगे हुए हैं। और That was brilliant, absolutely brilliant from the two players. Jharkhand, she was about half a body length in front. हम swimming में half body length कहते हैं. And look at this again. Haryana are finding it difficult to hold on to the ball. Possession most of the time has been with Jharkhand in the 5 minutes. I would say about 80% of the possession has been with Jharkhand. But that run between the two Jharkhand and Haryana players was beauty. अगर मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि कोई 100 मीटर्स की रेस वो दौड़ रहे हैं वहाँ पर। मिलिंद, बिल्कुल मुझे भी लग रहा है कि हरियाणा की अनुभवी टीम झारखंड की इस युवा टीम के खिलाफ संघर्ष करती हुई, जबकि कहा जाना इससे उल्टा चाहिए था। तो स्थिति ये है। मोनिका बैक टू झारखंड, द डिफेंस स्ट्रांग देयर, ऑन टू द सेंटर लाइन एंड वेटिंग देयर वाज नेहा। एंड आई गो बैक अगेन, Rani Rampal 12 goals, she's still not there. Neha 9 goals, of which 4 have come from penalty corners. And look at that, how quickly Jharkhand is taking possession of the ball. छीन लेते हैं। मेरे पास कुछ अच्छे पराठे मिले हैं
मेरे पास अच्छी गुलाब जामुन मिला है, ये प्लेट पे नहीं रहेगा, मैं जल्दी लेके इसको लेके दौड़. Oh, beauty, beauty. First time that we've seen them again here, or second time that we've seen Jharkhand. I love this. I love this play. 6 or 7 odd minutes of play here in the first semi-final, the first quarter. मुझे, I'm sorry I'm being a little biased, but मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन शायद झारखंड के साइड में जा सकता है, और अगर वो जाएगा तो कितना बड़ा एक हॉकी के लिए एक मायने रखेगा कि एक झारखंड जैसी साइड विलेजेस में से आते हैं, एंड देयर दे आर ऑन द 23 स्क्वेयर्स इट अप. Oh yes, beautiful. And Dinesh, the beauty has been, the passing has been brilliant. Haryana now mounting the pressure, taking it on from here on. My only thing is that one mistake from either of the two sides, that first goal comes and psychologically the other side will be on top. जी मिलिंद, सही कहा आपने. चाहे कितने भी अंतर्राष्ट्रीय सितारे इनके पास हों, लेकिन आज खेल का प्रदर्शन वो कैसा करते हैं, आज ग्राउंड में वो किस प्रकार खेलते हैं, खेल का नतीजा उस पर निर्भर करेगा. जिस प्रकार से गेंद का पोजीशन झारखंड के पास है और लगातार आक्रमण उन्होंने किए हैं हरियाणा के शूटिंग सर्किल के अंदर, वे निश्चित रूप से ये बात तो दर्शाते हैं कि झारखंड बहुत ऊंचे हौसलों के साथ आज हरियाणा के साथ खेलने के लिए इस मैदान पर उतरी है. Sharmila Devi on to Neha on the far side. Navneet Kaur who has got as many as 6 goals into the danger area. There is Rani Rampal. She's come up there now, so the substitution has happened. Rani Rampal is back on the field, or is on the field, with Jyoti there. So this is the first time that we have seen a little bit of a danger coming for the Jharkhand side. 23 yards. Squares this on very quickly onto the far side. Well, that could have been a mistake which could have been costly. Back to Jharkhand. How quickly they take possession of the ball out there. Through pass, long, onto the far side, very quickly, and over the back line there. But this is the tempo in about 9 odd minutes of play that we've seen so far. The tempo of the game has been very, very quick, and that's what hockey, good hockey. No. Yes, danger thwarted there for Haryana. Haryana, I'm sure, must be a worried lot from what's happened in 9 minutes of play. बिल्कुल मिलिंद, जिस तरह से झारखंड खेल रही है, मुझे लगता है उसी कारण कोच को बाध्य होना पड़ा है कि वे रानी रामपाल को ग्राउंड पर भेजें. जो उनका आत्मविश्वास है, जो उनकी सोच है हरियाणा के कोच की, वो थोड़ा सा डगमगाई है, और इसीलिए उन्होंने रानी को एक बार ग्राउंड पर प्लेइंग 11 में उतार दिया है. हालांकि रोलिंग सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ ही देर पहले झारखंड ने आक्रमण किया था शूटिंग सर्किल में, गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने, बहुत एक मौका हो सकता था, एक अच्छा मौका हो सकता था मिलिंद, और यदि आरंभिक क्षणों में झारखंड ये सफलता प्राप्त कर लेता तो ये एक बहुत अच्छी बात होती, कम से कम झारखंड के लिए. I hope you have had early breakfast at home and sitting in front of your television sets as we watch Haryana. Sharmila Devi there on the far side, on to Sonika, dispossessed by Jharkhand. That was a sizzler which was not possible for any of the Jharkhand players to latch on to. The game now shifting to the Jharkhand side, into the striking circle. There's only one Haryana player. This is not what they want. Usha. चपलता हम जो कहते हैं, या the art of taking it away from your opponent. Rani Rampal. Is this the one? Is this the one? Yes. Can you imagine after 11 minutes of play, what has Jharkhand done? 3 defenders, all sleeping out there, and who but Rani Rampal does all the work out there for them. Rani Rampal getting her 13th goal, her 13th field goal. All 13 field goals coming from Rani Rampal, the former India captain,
And what a start this is. I'm a little dejected for Jharkhand. इतनी अच्छी खेली है उन्होंने करीबन 12 मिनट के गेम में, और 3 डिफेंडर्स थे वहां पर और वो चूक गए. मुझे लगता है बिलेंद की ये हरियाणा का गोल झारखंड के खेल में और तेज़ी ला देगा, क्योंकि अब उनके सामने बढ़त का नहीं बराबरी का प्रश्न है. और रानी रामपाल ने जिस प्रकार इस टूर्नामेंट में अपना ये 13वां फील्ड गोल किया है, एक दर्शनीय फील्ड गोल. लेकिन मिलिंद वहाँ पर कमज़ोरी रही झारखंड के डिफेंस की, क्योंकि अभी तक तो वे बहुत होशियारी से रक्षा कर रही थी. और एक बार फिर से एक नया आक्रमण हरियाणा की ओर से टीमें आ चुकी हैं. टोमोहॉक के द्वारा एक और गोल करने की कोशिश, लेकिन डिफेंडर्स ने झारखंड के गेंद को क्लियर किया था. 23 मीटर की लाइन से एक बार फिर आक्रमण, लेकिन झारखंड के पोजीशन में गेंद 23 मीटर की लाइन से समान अंतर पास देना चाहती थी, लेकिन बीच में ही टैकल किया हरियाणा के 7 नंबर की जर्सी में जो वहां पर खेल रही हैं शर्मिला देवी. तेज तर्रार खिलाड़ी हैं, लेकिन एक बार फिर से आक्रमण झारखंड का सीमा रेखा के समानांतर 23 मीटर की लाइन को क्रॉस किया. 2 प्लेयर वहां झारखंड के, हरियाणा के 3 खिलाड़ियों से घिरे हुए. एक और प्रयास, लेकिन शूटिंग सर्किल के आने में फिलहाल शूटिंग सर्किल के अंदर आने में मिलिंद फिलहाल तो वे सफल नहीं हो सकी. लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो पहला गोल है हरियाणा का, ये एक ऊर्जा देगा. और यहाँ एक प्रयास जो उनका था वो पेनल्टी कॉर्नर के रूप में बदला है. लेकिन जबकि हरियाणा 1-0 से आगे है, झारखंड को इस क्वार्टर में मिलने वाला ये पहला पेनल्टी कॉर्नर, और ये एक मौका है, ये अवसर है. यदि इसे भुना लिया जाता है झारखंड की ओर से, तो खेल एक नए रूप में हमें आगे देखने को मिलेगा. शायद किस्मत ने कहा होगा कि आपने इतने अच्छे खेल खेले 12 मिनट में, तो ये ले लो पेनल्टी कॉर्नर में आपको देती हूँ. किस्मत ने कहा होगा. आर दे एबल टू कैपिटलाइज? नो and wasted there by Jharkhand. But what a pity. They played well for close to 12 minutes out here in the first quarter. But it took the brilliance of Rani Rampal with Neha up there to Navneet Kaur. And this is the one. Look at the 3 players in defense. And this was the penalty corner which was wasted by Jharkhand. Wonderful work there coming from the Haryana goalkeeper, the captain and India international Savita Punia. पुनिया एक नाम या सरनेम काफ़ी फेमस हो चुका है हर क्षेत्र में. हॉकी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग. तो हरियाणा से पुनिया नाम ने काफ़ी भारत को एक अलग अलग क्षेत्र में प्लेयर्स दिए हैं. झारखंड वंस अगेन दे विथ just under 2 minutes of play remaining out here. 2 Haryana players now blocking the 2 Jharkhand attackers. Snatched away after there was a carried, and now moving forward. But an infringement there called by the umpire on the far side, KT Lalimpui. Perhaps the 2 sides might get a little relaxed here in 1 minute and 30 odd seconds remaining. Not Jharkhand. Jharkhand know that they would like to go into the half time, or rather the end of the first quarter. We are still used to that half time word. एक ज़माना होता था जब 35 मिनट का हाफ टाइम हुआ करता था, लेकिन अब we have now 4 quarters. So after the first quarter, this is quick move there by Neha on her own, not finding any player. Oh, that's wonderful. That's wonderful there. Taken by Navneet Kaur into the dangerous area all by herself. This is what I found lacking in Haryana today. The cohesion जो हम कहते हैं, मिलजुल के खेलना, that seems to be lacking. Even earlier on, Rani Rampal was all on her own. Mahima Chaudhary looking for a player, her a partner onto the far side. Navneet Kaur, under a minute to go here in the first quarter. क्वार्टर के इस पहले क्वार्टर के अंतिम क्षणों में हरियाणा का एक और आक्रमण देखते हुए आप डीडी स्पोर्ट्स पर. कोशिश शूटिंग सर्किल में आकर एक बार फिर गेंद को गोल पोस्ट में डालने की. गेंद अभी भी हरियाणा के पास. उनका पहला प्रयास है कि वे एक और गोल कर लें, लेकिन वहां सफाई के साथ झारखंड के प्लेयर्स ने क्लियर किया था. 1-0 स्थिति ये है हरियाणा के पक्ष में अभी. Dinesh, before the game started, I was talking to Vikas or I spoke to you also, and this is an attack there from Jharkhand very quickly. I was saying Haryana might win 7-0 or 8-0, but the way Jharkhand has played in the first quarter,
I don't feel that that's going to be the story of the day, unless, of course, Jharkhand, after the second or the third quarter, starts crumbling. So that's the end of the first quarter here in the first of the semi-finals between Haryana and Jharkhand at the major Dhyan Chand complex, the hockey ground. Haryana are leading by 1-0. But what a 15 minutes that we've seen, Dinesh. ऐसे अगर हॉकी देखे तो हॉकी का स्तर बढ़ेगा. We go back to 1928 in men's hockey. This is the one which was carried, and from here on, Rani Rampal does not miss any. उसके पास ऐसे अगर मौके मिलेंगे तो वो उसको पकड़ के रखेगी. मिलिंद, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि झारखंड की टीम ये सोचकर उतरी है कि उन्हें सविता पूनिया और रानी रामपाल जैसे सितारों से सजी टीम के विरुद्ध सफलता नहीं मिलेगी. आरंभिक क्षणों में, क्वार्टर के आरंभिक क्षणों में दिखेगी अभी तक जो स्थिति है पहले क्वार्टर की. हरियाणा 1, जो कि रानी रामपाल ने गोल किया था. मिलिंद, यदि हम टॉप गोल स्कोरर की ओर देखें तो अभी भी रानी रामपाल 12, ये 13वां गोल था उनका, जो कि फील्ड गोल था. दूसरे नंबर पर गुरजीत कौर हैं पंजाब की, जिन्होंने 10 गोल किए हैं. मज़े की बात ये मिलिंद कि ये 10वां गोल पेनल्टी कॉर्नर से किए गए हैं. नेहा जो हरियाणा की हैं, 5 फील्ड गोल, 4 पेनल्टी कॉर्नर, कुल 9 गोल कर चुकी हैं. प्रीति उत्तर प्रदेश की 5 फील्ड गोल, 3 पेनल्टी कॉर्नर और 1 पेनल्टी स्ट्रोक के माध्यम से 9 गोल. अभी आप देख रहे हैं तो जो मैच के अंपायर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर थे, और पहले क्वार्टर का खेल जिस स्थिति में समाप्त हुआ है वहां पर हरियाणा 1-0 से झारखंड की युवा खिलाड़ियों से आगे ज़रूर है. जैसा कि मिलिंद ने कहा, मैच का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन पहले क्वार्टर में झारखंड ने जिस तरह से खेल दिखाया है वे दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं. क्या लगता है आपको, हरियाणा का अलार्म क्लॉक जो था 10 बजे शुरू नहीं हुआ था, 10 बजकर करीबन 10 मिनट के बाद शुरू हुआ. हम कहते हैं ना वेकअप कॉल, तो हम सवेरे रात को जब सोते हैं तो एक अलार्म लगाते हैं, और हरियाणा के जो पहले 10 मिनट थे वो उन्होंने बहुत ही अच्छे नहीं खेले थे. एंड आफ्टर दैट सडनली दैट वेकअप कॉल केम अबाउट. दिनेश now slips out of the commentary box or the commentary seat and joining me here in the second quarter after Haryana are up by 1-0. That goal coming from Rani Rampal, the former India captain, in the first quarter, which was around 11 minutes of play in the first quarter. We're now into the second quarter, 4 quarters of 15 minutes each. After this quarter, there'll be a break of 10 minutes, which is called the half time, 10 minutes. And here is Jharkhand now. Once again, same ploy. The same ploy as Haryana moves up now. Swiftly. Change of game plan. All by herself is Navneet Kaur. And taken away well. Taken away well by Jharkhand. That was dangerous from a Jharkhand point of view, but Haryana just went on and on. Sonal Minch, the goalkeeper for Jharkhand, tested only once, and they got a penalty corner there. So, as I welcome Vikas out here in the commentary box, Vikas, you come at a time when you have Haryana now looking at a second chance their way. It will be taken by Navneet Kaur, who's got a total of 9 goals, 5 field goals and 4 penalty corners. एक बार धन्यवाद मिलिंद, और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन. पेनल्टी कॉर्नर लिया है हरियाणा ने, बहुत अहम रहेगा. बहुत सही बात कही आपने. आज जिस तरीके से मुकाबला, सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला है, हरियाणा वर्सेस झारखंड. इंजेक्ट किया, गोल पोस्ट के क्या अंदर रखने में कामयाबी, और संभवतः यहां से हरियाणा की टीम ने मिलन दूसरा गोल कर दिया है इस समय दूसरे ही पेनल्टी कॉर्नर में. बहुत ही शानदार नजर डालते हैं इसे रिप्ले पे. ट्रैक किया था, इसको स्टॉप किए, वापस से ये हिट लिया, और गोल कीपर बात करें इस समय सोनल मिंज के पैरों के पास डिफ्लेक्ट होकर गोल के अंदर मिलन. Just the second minute of play out here of the second quarter, and how quickly Haryana have bounced back. Because the important factor was that in the very first minute, Haryana moved from their half, which was the defense, into the attacking half of Jharkhand, and then that was the chance that they got for themselves to earn a penalty corner.
if you get penalty corners and if you can utilize them well, as Haryana have done right now, if you go to the history of Haryana, there have been 10 penalty corners which have been taken by Gurjeet Kaur of Punjab. 10 penalty corners, and she scored 10 penalty corners. If you look at Navneet Kaur of Haryana, 2 penalty corners she scored, and Jasprit Kaur has scored 5 penalty corners for Haryana. So just goes to show, if you get penalty corners, utilize them well. यकीनन तौर पर पेनल्टी कॉर्नर आप बनाते हैं उससे बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। और मिलिंद, गुरजीत कौर हो चाहे रानी रामपाल, ये वो खिलाड़ी होती हैं जो लंबे समय से हॉकी में, फिलहाल वापस से इस समय ब्लू कलर की जर्सी में हरियाणा की टीम जो तकरीबन 9 से 10 इंटरनेशनल प्लेयर से सजी हुई। बात करें रानी रामपाल, अभी तक दोनों गोल इनके नाम आए हैं। और देखिए इस समय शूटिंग सर्कल के अंदर, और जिस तरीके से मिलिंद आपने बात की पेनल्टी कॉर्नर की, और जो पिछले दोनों पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं जिसमें एक को कन्वर्ट किया रानी रामपाल ने और एक फील्ड गोल और एक तीसरा पेनल्टी कॉर्नर हरियाणा के लिए। Suddenly Haryana looks a very different side from what we saw them in the first quarter. Just in about 2.5 minutes of play, Vikas here in the second quarter, अलग side लग रही है हरियाणा की. One would never have thought the way they played in the first quarter that this is the same Haryana side that we are watching now. Navneet Kaur to stop the ball. This time the plan has been changed. It has been Navneet Kaur who's got those 2 penalty corners. Stopped, and well. Jharkhand now seems to be under a bit of a pressure out there. All the apparatus which is used got away. Stopped well, and then off the Haryana strikers or the aggressors stick that it went out of play. So the news here in the second quarter, after Haryana was up by 1-0 in the end of the first quarter, they are up by 2-0. 2 important goals which have come their way. यकीनन तौर पे 2 गोल की बढ़त पे हरियाणा नजर डालते हैं। मिलिंद, जिस तरीके से दूसरा गोल फिर रानी रामपाल ने पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट किया, और फिलहाल एक बार फिर से बेहतरीन मुकाबला सेमीफाइनल है हॉकी का। वो हॉकी जो पूरी दुनिया में भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा। 8 ओलंपिक मेडल भारत के नाम 1928 से लगातार मिलिंद जिक्र करते रहे हैं। लंबे समय से कमेंट्री से आप कवर भी करते रहे हॉकी और तमाम स्पर्धाओं को। लेकिन आज पहले क्वार्टर की झारखंड ने जो शुरुआत की, प्रशंसनीय शुरुआत थी। झारखंड की टीम के बारे में बता दें, 34वें नेशनल गेम जो हुए थे उसमें ये टीम सिल्वर मेडल झारखंड एक बार जीत चुकी है। 34वें नेशनल गेम में 2011 जो कि रांची में आयोजित हुए थे। फिलहाल एक बहुत शानदार अटैक लेफ्ट फ्लैंक से, दोनों फ्लैंक का बेहतर यूज करती है टीम, और 11 नंबर के जैसे खिलाड़ी वापस से अटैक बनाते हुए पास किया 7 नंबर में। शर्मिला देवी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन वापस से अब अटैक पे बहुत अच्छा डिफेंस ऑर्गेनाइज होकर, पहले क्वार्टर की मैं जिक्र कर रहा था, बहुत उम्दा खेली। 10 मिनट झारखंड की टीम ने इतना शानदार खेली मिलन कि एक बड़ी टीम को जिस तरीके से इन्होंने परेशान किया था, दर्शाया कि क्या बेहतर खेल कौशल है झारखंड के पास। अगर आप ने हॉकी की जो बात की है, वंस अगेन डेंजर दैट दिस इज स्लैम्ड बट नॉट गुड इनफ फॉर हरियाणा टू गेट गोल नंबर 3। आप बात कर रहे थे कि हॉकी की जो तरक्की हुई है, फर्स्ट टाइम हॉकी, विमेंस हॉकी वाज एन ओलंपिक स्पोर्ट in 1998 only, and coming into the Nagano games, most expected the finals would be between Canada and the United States, but certainly hockey has changed over the years. That was in 1998. We'll talk about the women's evolution of hockey, but yes, men have inspired, I'm sure, the women over the years to come to this level. Look at the fitness level of Haryana and Jharkhand. I'm sure they can take any men's side. अगर आपको याद है, first quarter में towards the end it was Jharkhand and the Haryana player, 2 of them ran or sprinted like they were running the 100 meters. यकीनन तौर पे क्या गजब के किसी एथलीट की तरह दर्शाया। आपकी बात से बिल्कुल सहमत मिलिन। लेकिन अब अटैक पे झारखंड की टीम, झारखंड ने जिस तरीके से सेमीफाइनल में जगह बनाई है, फिलहाल हल्का सा वहाँ पे खेल बाधित हुआ, और फिलहाल यहाँ से लॉन्ग कॉर्नर लेने के लिए मुकाबले में 2-0 की बढ़त पे हरियाणा, सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला। Yes, while we did speak about the
hockey 1998, that was the ice hockey that I did mention. Chance there, wasted. But the first women's Olympic field hockey competition was introduced by the IOC at the 1980 Summer Olympic Games. And we all know the importance of the 1980 Summer Olympic Games for Indian hockey, because that was the last time before we won a medal this time that the side won a medal at the 1980 Olympic Games in Moscow. So 1980 Olympic Games in Moscow, when India won a gold medal in men's hockey, and then it was also introduced for women in the Olympic Games. यकीनन तौर पे 1980 में जिस तरीके से मॉस्को में विमेन गेम की हॉकी फील्ड हॉकी की शुरुआत हुई थी, और देखिए मुकाबले में सेमीफाइनल में दो बड़ी टीमें हरियाणा, बात करें 35वें नेशनल गेम की उप विजेता है, सिल्वर मेडलिस्ट केरल में जो पिछला आयोजित हुआ था, और 34वें नेशनल गेम झारखंड को ही हरा करके इन्होंने 2011 में नेशनल गेम का जो पिछले दोनों संस्करण हैं दोनों में फाइनल खेली है हरियाणा। तो इस टीम की दर्शाते हुए कंसिस्टेंसी को, और इस टीम में नजर डालिए रानी रामपाल, 250 मैचों का अनुभव, ओलंपिक खेल चुकी हैं सबिता पूनिया, इस बार FIH बेस्ट गोलकीपर के अवार्ड 2023 से हाल ही में नवाजी गई, सिरसा के रहने वाली 240 मुकाबले मिले इनके नाम। और ये टीम वही दूसरी तरफ झारखंड को भी कम नहीं आंक सकते, सलीमा टेटे, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और निकी प्रधान जैसे सितारे, और ब्यूटी डुंगडुंग युवा टीम है ये भी झारखंड की। Oh yes, absolutely. I think the combination of 7 internationals for Haryana, 2 internationals for Jharkhand, 9 internationals playing out here, you can't have anything better on a wonderful Sunday morning. My submission to all of you watching this telecast on our national channel here, I'm sure is going to inspire the youth to enjoy this game of hockey. Back to Haryana. Oh, that was a wonderful pass there. Lurking very well on that occasion. And Navneet Kaur couldn't find anyone. 2020 Tokyo, Netherlands beat Argentina 3-1. But go back to 1980. Zimbabwe won the first gold medal at the 1980 Olympic Games for women when they beat Czechoslovakia. Netherlands have dominated as we now watch the ball going perhaps harmlessly onto the far side, and look at the Jharkhand player there, how swiftly coming to retrieve the ball. What because the Jharkhand team or players are trying to do is to make sure that they are on the ball. जितने बॉल के ऊपर आप रहेंगे, जितने बॉल के पास रहेंगे, जितनी बॉल की पोजीशन करेंगे, तो उतना उनको चांस बेहतर होगा to get a goal against Haryana. Get goal number 1 now, beat 2-1, the confidence will come up high. यकीनन तौर पे कॉन्फिडेंस से बढ़ा होगा, और बहुत बेसिक चीज़ है हॉकी में। फिलहाल इस समय 7 नंबर की जर्सी खिलाड़ी शर्मिला देवी बॉल लेकर के, क्या स्किल है इस समय, और मुकाबले में देखें 6 नंबर की जर्सी में वहां पे उदिता, जानी मानी बात करें उदिता, डिफेंस की एक अहम कड़ी है, ऑल हॉकी का जमाना है। उदिता दुआ हिसार की रहने वाली, 70 मुकाबले खेले, 4 गोल किए। एशियन गेम्स 2018 जकार्ता, कॉमनवेल्थ 2022 बर्मिंघम, और फिलहाल इस बीच तारीफ करनी होगी झारखंड, बढ़िया फ्लैंक का यूज करके मिडफील्ड में बॉल पोजीशन बेहतर, अच्छी प्रेसिंग, हाई पासेस और लॉन्ग बॉल को जिस तरीके से अभी तक ट्रैप किया। फिलहाल एक बार फिर से हरियाणा की टीम कितनी तेज गति से थ्रू पास आया, गोलकीपर की तारीफ करनी होगी इस बार सोनल मिंज की, इस खतरे को टाला। और क्या बेहतरीन सेमीफाइनल का मुकाबला हरियाणा वर्सेस झारखंड, ये मुकाबला बहुत अहम रहेगा, और बहुत सारे अहम जानकारियां हमारे साथी कमेंटेटर मिलिंद वागले आप तक पहुंचाए। हॉकी का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, और खास करके विमेंस हॉकी 1980 मॉस्को ओलंपिक में पहली बार फील्ड हॉकी की बात कर रहे हैं हम। लेकिन वापस इस समय बॉल पोजीशन 23 मीटर की रेखा से हरियाणा की टीम इस समय अटैक बनाती हुई। झारखंड की टीम बात करें 34वें नेशनल गेम्स जो हुए थे, रांची ने आयोजित किया था झारखंड में, वहां ये टीम सिल्वर मेडलिस्ट है मिलिंद, और ये टीम कहीं ना कहीं पिछले 4-5 सालों में आपने बहुत अहम बात की, सिमडेगा, खोटी जैसे छोटे गांवों से 5 से 6 इंटरनेशनल प्लेयर निकलना। मिलिंद, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से हॉकी में छोटे छोटे राज्यों का और कुछ ऐसे अहम सुदूर इलाकों का जो कंट्रीब्यूशन इस समय वर्तमान हॉकी में, वो प्रशंसनीय है।
this is my India. India is not Mumbai, India is not Hyderabad, Bangalore, Delhi, Kolkata. India is these places that you mentioned. To the other side now, Haryana mounting the attack all by themselves. Today we look at different Haryana side. They don't look as if they are playing together as a team. वो नज़र नहीं आ रहा है जो हरियाणा is known to play. It's a different matter that they've got 2 goals out there, Vikas. But अगर आप देखेंगे, they are all alone. This is the very famous Sonika there. She's not an international, but nevertheless coming up now. Oh, look at this girl, number 9, the dangerous girl as far as Jharkhand are concerned. They'd like to keep her as far away as possible from the ball. Rani Rampal, जितने दूर उसको रखेंगे आप बॉल से, उतना झारखंड का फायदा होगा. But your question there, it's these small places which are producing hockey players, are producing sportsmen, not only hockey, and that augurs well for the sports in India. And that's, I think, the mission of led by the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, when he has made sure that every particular sport, it is not cricket, it is not athletics, it's not swimming, it's not football, but it's now Malkham, Yogasana, archery, lawn ball, every sport gets important. Jharkhand are up now in this particular one, close to the... This is exactly what I've been liking about Jharkhand. They have got the ball possession. They're making sure that someone like Gagandeep Kaur will not get it, but they'll take it away from her. यकीनन तौर पे इस समय अन्य खेलों पे भी भारत का देखिए, लॉन बॉल में इस बार कॉमनवेल्थ में भारत गोल्ड मेडल लेकर आए. योगासना, भारत का जो परंपरागत खेल है योगा, उसको जिस तरीके से प्रमोट किया प्रधानमंत्री, और खेलों के लिए जो बेहतरीन कोशिश की जा रही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, गुजरात राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग. फिलहाल इस समय एक समानांतर पास 15 नंबर के जर्सी में सोनिका ने पास किया 11 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी इस समय गगनदीप कौर. लेकिन झारखंड की तारीफ, डिफेंस ऑर्गेनाइज होता है बेहतर तरीके से, प्रेसिंग शानदार इस समय कॉम्बिनेशन. मिडफील्ड हॉकी में देखें, मिडफील्ड का बैटल बहुत अहम. मॉडर्न हॉकी में आपके जो मिडफील्डर्स हैं, जितना बॉल सप्लाई करेंगे बेहतर फॉरवर्ड को, और फॉरवर्ड लाइन में देखें मिलिंद, शर्मिला देवी, रानी रामपाल इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं फॉरवर्ड लाइन में. और इतनी बॉल बेहतर जब सप्लाई होती है, यही वजह है 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, 1 फील्ड गोल आया, और इसे बीच 9 नंबर में रानी रामपाल. ये खिलाड़ी को बॉल से दूर रखना होगा, बहुत अहम बात कही थी आपने. वो कार्य कर रहे झारखंड वापस से अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को बेहतर करके अटैक पे, लेकिन इस बार बॉल हेवी टच था, इस कारण कंट्रोल नहीं कर पाई. शानदार ड्रिबलिंग मिलिंद. Yes, absolutely. I think the combination of the 4 or 5 Haryana and Jharkhand players that we've watched in the last 30 odd seconds, who can believe that this is the class of hockey that we are now watching. Hockey for women particularly has improved so much over the last few years, and that's the reason as to why we have seen the results at the international level. Indian women have come of age, I would really say, and with competitions of these nature, the 2 Haryana players there, Rani Rampal and Navneet Kaur, the 2 major goal scorers. रानी रामपाल वो खड़ी है वहाँ पर जैसे कोई एक शेर खड़ा है अपना प्राय मिलने के लिए, एंड जब उसको बॉल मिल जाता है, देखिए सेम थिंग, शी इज जस्ट वेटिंग फॉर द बॉल टू बी रिसीव्ड देयर, एंड द मोमेंट शी रिसीव्स द बॉल, शी इज इनटू हर ओन वे टू गेट क्लोजर देयर. इससे पीछे समय बेहतर अटैक, शॉटिंग सर्कल में गोलकीपर को बीट किया. रानी रामपाल ठीक तरीके से इस बॉल के रीच में नहीं थी, वरना बेहतर तरीके से तेज तर्रार फॉरवर्ड हैं. 250 मुकाबले खेले और दूसरे क्वार्टर की यहीं पे समाप्ति हुई, यानी पहला हाफ. सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला, हरियाणा 2-0 की बढ़त पे झारखंड के खिलाफ. Oh yes, oh they got a penalty stroke there. How did we miss it? Yes, that stroke that I saw the umpire, I thought it was time. What a time to get a penalty stroke. रानी रामपाल इस समय पेनल्टी स्ट्रोक, और ये कहां गलती करती हैं रानी रामपाल का आज के मुकाबले में तीसरा गोल. तीनों ही गोल इस समय पूर्व भारतीय कप्तान, ओलंपिक टीम की हिस्सा रह चुकी है, नजर डालते हैं पेनल्टी स्ट्रोक पे. कोई मौका नहीं था सोनल मिंज के लिए. 2020 टोक्यो ओलंपिक में रानी रामपाल की कप्तानी में सेमीफाइनल तक टीम पहुंची, 4th प्लेस अर्जित की थी.
और क्या बेहतरीन इस समय तीसरा गोल भी पेनल्टी स्ट्रोक मिलन अनुभवी खिलाड़ी रानी रामपाल ने इस समय ली। Well, the attention was on the clock, which said that it was time up. But remember, when the umpire had awarded the penalty stroke, there was, I think, a few seconds remaining. So, our correction there as we go into the half time after 2 quarters. Haryana picking up their third goal. Haryana leading Jharkhand here in the first of the 2 semi-finals by 3 goals to 0 at the Major Dhyan Chand Hockey Stadium in Rajkot. So yes, wonderful AstroTurf here. It's called the race course area or the race course ground. And because if you look back on the 2 quarters, which means 30 minutes of play, 15 minutes plus 15 minutes, it's a pity, as I said, Jharkhand started off so well. I don't think they deserve 3 goals against them. क्या लगता है 3 गोल्स उनके खिलाफ मेरे को नहीं लगता है कि ये स्कोर होना चाहिए था. बट रानी रामपाल ने कितनी अच्छी गेम खेली है और ऑल 3 गोल्स. And while we have the half time, let's go across and listen to a chat. नमस्कार, इस वक्त हमें 36वें नेशनल खेल के जहां हॉकी की स्पर्धा राजकोट में मेजबानी हो रही है. आज सेमीफाइनल से शुरू होने वाले हैं विमेंस में. पहला सेमीफाइनल हरियाणा वर्सेस बात करें झारखंड का, और झारखंड से ही ताल्लुक रखने वाले और वर्तमान में हॉकी इंडिया के जनरल बात करें सेक्रेटरी भोलानाथ सिंह जी हमारे साथ हैं. स्वागत है भोलानाथ सर आपका. जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को. और इस 36वीं नेशनल गेम अब समापन की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रही है और बहुत सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, इसलिए यहाँ के सभी आयोजन समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद. सर, आपकी झारखंड टीम इस समय सेमीफाइनल में है और कहा जाए तो हॉकी के लिए लगातार जिस तरीके से पिछले 5-7 सालों में हॉकी इंडिया की जो पहल है, जो लगातार बेहतर कोशिश कर रही, उसी का परिणाम 41 साल बाद मेडल भी आया. और आगे किस तरीके के साथ हॉकी इंडिया सर आगे की क्या रणनीति बनाई है आने वाले भविष्य को देखते हुए? देखिए, अभी हम लोग नए नए आए हैं, सारी रोड मैप और रणनीति पर सारी बातें हो रही है, चल रही है. बहुत अच्छा आने वाला भविष्य हॉकी इंडिया का होगा. थोड़ी सी पॉलिश की ज़रूरत है. जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग अब ओलंपिक में मेडल जीतने लगे हैं, उसको गोल्ड में तब्दील करना है. और जो पहले वाला जो भारत का जो इतिहास हॉकी का रहा है, हम लोग को पूरा प्रयास रहेगा कि वो पुनः वापस आए. भोलानाथ जी, जिस तरीके से ये मेज़बानी हुई है 36वें राष्ट्रीय खेलों की, 7 साल बाद वापस से गुजरात सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, और जिस तरीके से इन्होंने होस्ट किया है, बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई है. क्या लगता है कि जिस तरीके से खेलों के लिए प्रयास हो रहे हैं देश में, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मात्र 100 दिन के अंदर इतने बड़ा आयोजन 36वीं राष्ट्रीय खेल कराना किसी भी राज्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ है. इसके लिए मैं गुजरात सरकार को और भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इतने बड़े टूर्नामेंट को इतना जल्दी सक्सेसफुली और बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन कराकर और इसको दिखाए हैं. ये किसी भी स्टेट में कराने में करीब 4 से 5 साल तैयारी में लगती है. 100 दिन में तैयारी करके नेशनल गेम को करा देना ये बहुत बड़ी चीज़ है. और जो भी सुविधाएं दी गई है, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई है, जो खिलाड़ियों के लिए मेन, देखिए, ग्राउंड होता है, रहने का होता है, खाने का होता है. 3 चीज़ मेन किसी भी टूर्नामेंट का आयोजन में होता है और तीनों चीज़ यहाँ बेहतर हैं. सभी खिलाड़ियों को होटल दिया गया, होटल में खाने का है, ग्राउंड अच्छे हैं, सारी सुविधाएँ अच्छे हैं. तो जितनी भी तारीफ़ किया जाए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का और भारत सरकार का, साई का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि 7 साल के बाद 35वीं नेशनल गेम जो केरला में आयोजित हुआ था, उसके बाद 36वीं नेशनल गेम को उन्होंने गुजरात में आयोजन करवाए और ये बहुत सक्सेस और बहुत सफल आयोजन रहा. इसके लिए हम सभी को आभार, धन्यवाद.
यकीनन तौर पे जिस तरीके से ये 36वां नेशनल गेम्स की मेज़बानी की गई है, बहुत ही बेहतर तरीके से ये कोशिश की गई है और इतना बेहतर सुविधाएं। मेरा एक आखिरी सवाल भोलानाथ सिंह जी, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा और कई ऐसे राज्य हैं जहां पहले सुविधाओं का अभाव था, उसके बावजूद कई अच्छे प्लेयर देखें आप निकले हैं वहां से, निकी प्रधान जैसे और ऐसे सितारे जो आज झारखंड की टीम खेल भी रही सेमीफाइनल में। क्या लगता है कि और क्या ग्रास रूट लेवल पे हॉकी इंडिया किस तरीके से और बेहतर प्रतिभाओं को तराशेगी, जिन तक सुविधाएं कैसे पहुंचाने वाली है? देखिए, मेन फोकस हम लोग का सब जूनियर जूनियर लेवल पर होगा। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां अभी तक हॉकी एसो टर्फ नहीं है, जैसा आप जानते होंगे। तो हम लोग का मेन फोकस होगा कि जिस राज्य में अभी तक टर्फ का ये है, वैसे राज्यों में टर्फ वहाँ के गवर्नमेंट से बात करके, वहाँ के हॉकी एसोसिएशन से जो भी है उनसे ये करके वहाँ टर्फ लगवाएं। सब जूनियर और जूनियर खिलाड़ियों पर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वही आने वाले भविष्य हैं हम लोग के लिए। उन लोग के लिए एक रोड मैप, एक अच्छा उन लोग के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा कंपटीशन और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को सुविधाएँ मिले। तीसरी चीज़ है कि आज हरियाणा और झारखंड का सेमीफाइनल, झारखंड में बहुत अभी गवर्नमेंट हॉकी के लिए कर रही है, सुविधाएं दे रही है, और ज़रूरत है जिसको हम लोग बहुत जल्द ये करेंगे। और बहुत दोनों तगड़ी टीम है, मगर ये है कि हरियाणा फुल इंडिया टीम है। हमें निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता मात 3 गो इंडिया के खिलाड़ी हैं। मगर ये है कि मैच अच्छे होंगे, देखने लायक होंगे। यकीनन तौर पे बहुत अहम बात कही आपने कि सब जूनियर और जूनियर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। बहुत ये थे भोलानाथ सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल हॉकी इंडिया के। बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक्स डीडी स्पोर्ट्स की पूरी टीम के साथ। You're in your soul, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're in the spotlight, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, cause this is Africa. This time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed and this is your स्पर्धा राजकोट में मेजबानी हो रही है। आज सेमीफाइनल से शुरू होने वाले हैं विमेंस में। पहला सेमीफाइनल हरियाणा वर्सेस, अब बात करें झारखंड
him here at the racecourse grounds in Rajkot. The big day, the semi-finals of the women's, and also a reminder that the second semi-final would be in the afternoon, Madhya Pradesh versus Punjab. That will be at 15:30 hours as we now head into the third quarter. What will Haryana do? Nisha Varshi through pass there. What's the plan or what's the ploy? Because that Jharkhand has adopted. Remember, they are down by 3 goals. We have seen good sides or great sides coming back, and we know the recent case about England coming back after being down 4-0. So coming back is not difficult, but particularly for Jharkhand when you're playing against a very strong side like Haryana with 7 international players, the comeback is going to be difficult. The attitude should be don't give up. You know, yesterday in the swimming pool we had Richa Mishra, who's been swimming now for 20 years. And when someone like Hashika Ramachandra, who was 13 years old, she was not even born when Richa Mishra won her first gold medal. So don't give up, I think it should be the mantra for Jharkhand. यकीनन तौर पे बहुत अहम बात कही आपने। कभी भी मुकाबले में हॉकी जैसे तेज तर्रार खेल में वापसी के दरवाजे खुले रहते हैं, और कभी भी आप हार न माने, क्योंकि मानसिक तौर पर आप स्वीकार न करें। फिलहाल इस समय जिस बेहतरीन दूसरे सेमीफाइनल में शानदार बात करें लेफ्ट विंग से एक बेहतर अटैक बना रही थी हरियाणा की टीम, लेकिन उस डिफेंस ने इस अटैक को थोड़ा सा विफल किया। और कहीं ना कहीं ये वो झारखंड की टीम है जिस टीम में सोनल मिंज गुमला से सालिमा टेटे इंटरनेशनल बात करें खिलाड़ी 65 मुकाबले खेल चुकी, कॉमनवेल्थ गेम की हिस्सा थी। वापस से देखिए ये ताकत है इस समय झारखंड की, स्किल देखिए इस बार इस समय लेफ्ट विंग से क्या शानदार बॉल पोजीशन और बेहतर बॉल कंट्रोल नजर आता हुआ 19 नंबर की जर्सी में रजनी करकेटा। ये झारखंड की ताकत है मिलन, मेरा मानना है। भले ही बात करें हरियाणा की टीम बहुत मजबूत है जिसमें कई इंटरनेशनल सितारे, लेकिन झारखंड युवा टीम कुछ भी कर सकती है। लेकिन इसे भी 7 नंबर में शर्मिला देवी बहुत बेहतर कार्य करती हुई समय विंग में वापस आती हैं, मिडफील्ड में बॉल को पुनः रिसीव करके बात कर दोनों ही फ्लैंक से अटैक बनाती है शर्मिला देवी, और साथ ही साथ रानी रामपाल, 2 बेहतरीन फॉरवर्ड, और ये मुश्किलें पैदा करती हैं मिलन। Yes, Jharkhand on the attack now into the danger zone for Jharkhand, and not being able to capitalize on that particular occasion. Yes, you made that important point. You know, when we watched Rajni Karketa with the ball for about a good 20 odd seconds going all by herself, it reminded me, हमने तो Major Dhyanchand को देखा नहीं है, but I've seen so much of Dhanraj Pillai right from the airline days to playing for Mumbai, Maharashtra, India, and it reminded me of Dhanraj. Oh, look at this, but taken away by the Haryana defense. And they now move on with Navneet Kaur. She's their star player, and who do we have? Number 9 has now become famous, Rani Rampal, brought down there very heavily on that particular occasion. Haryana leading by 3-0. We are into the third quarter of play here in the first semi-final. Good through pass, picked up well, turned well, trying to get the opening, but not successful. And Haryana in this, the third quarter, have come very clearly, because with an intention to score goal number 4, 5 and more. And this perhaps is one more opportunity which has come their way. यकीनन तौर पे एक और मौका, और जी हाँ, चौथा पेनल्टी कॉर्नर मिला है हरियाणा को। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पे टीम रणनीति बनाती है। हरियाणा की टीम जानी जाती है अपने तेज तर्रार हॉकी के लिए, पिछले दोनों नेशनल गेम में फाइनल खेली है, 34वें और 35वें। फिलहाल नजर डालते हैं इस समय इस पेनल्टी कॉर्नर पे इंजेक्ट करने के लिए। तीनों ही गोल अभी तक रानी रामपाल, एक पेनल्टी कॉर्नर से, एक फील्ड और एक पेनल्टी स्ट्रोक से फिलहाल पुश किया, ट्रैक किए खूबसूरती से, लेकिन इस बार अभी भी खतरा टला नहीं है। अंपायर वहां पे जरूर संकेत देती हुई, जिस तरीके से केटी लाल हिमपुली मिजोरम से हैं, और वापस इस समय अटैक पे ये ताकत मिलिंद इस टीम की, पलक झपकते इस समय अटैक बनाती है टीम। How quickly they moved from one half with Haryana taking that penalty corner, but not capitalizing on what came their way.
and then suddenly Jharkhand shifted the momentum to go into the attack to the far side. Haryana now. This is exactly what we've been watching about. She made sure that she was on her own. Sharmila Devi through pass squared on with Navneet Kaur. The brilliance of Navneet Kaur and Rani Rampal has been such a revelation to watch out here. But Sharmila Devi not in position to get it on to the left flank near the goal post and missed. That could have been a slight opportunity their way. Jharkhand will have to up their game from here on. We saw that attack just immediately after the penalty corner, because that's the type of game Jharkhand will have to continue to play. Attack, attack. The only way they can now score goal number 1 is through an attack. Rani Rampal, once again, you can't miss that 9 number, can you? यकीनन तौर पे 9 नंबर की जर्सी के इस खिलाड़ी को मनोमस्तिष्क में याद कर लीजिए, क्योंकि वो महिला हॉकी की भारतीय टीम की ये वो सितारा है पिछले 9-10 सालों में। लेकिन देखिए क्या शानदार अटैक, ये ताकत है झारखंड का। इस समय पुश किया बॉल को वापस से शूटिंग सर्कल में, गोलकीपर सबिता पूनिया, लेकिन यहाँ पे पेनल्टी कॉर्नर मिला झारखंड को। सबिता पूनिया के बारे में बता दें, इन्होंने अभी हाल ही में 2023 का बेस्ट गोलकीपर FIH अवार्ड दूसरी बार ये जीता है मिलन, और ऐसा करने वाली दुनिया की सिर्फ हॉकी में दूसरी प्लेयर हैं। और फिलहाल नजर डालेंगे इस पेनल्टी कॉर्नर पे। झारखंड को टीम यहां से चाहेगी अटैक की आपने बेहद अहम बात कही, कहते हैं सुरक्षा की भी गारंटी आक्रामकता ही है। और इस समय इस पेनल्टी को लेने के लिए 7 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी दीपिका सोरेन इस समय देखना होगा। सबिता पूनिया, ग्रेट वॉल ऑफ इंडियन हॉकी, सबिता पूनिया देखना होगा किस तरीके से दीपिका सोरेन जो कि सिमडेगा की रहने वाली, और देखना होगा इसी बीच खूबसूरती से कोशिश थी, लेकिन शायद ये खतरा यहां से टल, या एक बार फिर से मिलन शायद वापस से पेनल्टी कॉर्नर ले जाएगी। Oh yes, that wonderful village in Simdega district, Karnaguri, from where they have 6 players. Second time that Jharkhand have an opportunity. The Great Wall of the Himalayas, that the goalkeeper is no, yeah, oh yes, nearly there is what Haryana felt was against them, and Jharkhand here in the 10th minute of play. Well, what a chance this was for them. Look at this. Stopped well. Slammed. Stopped. Second time. Was it allowed? यकीनन तौर पे रिबाउंड पे बॉल वापस आई थी। सबिता पूनिया ने अपनी दाहिनी तरफ पूरी तरीके से रीच का इस्तेमाल करके और गोल के खतरे को टाल दिया यहां से, लेकिन बेहद गोल पोस्ट के नजदीक ऐसा लग रहा था मिलन की संभवतः पहला गोल झारखंड के लिए आ चुका है, लेकिन शायद यहां पे थोड़े अनलकी रहे। Everything was right. The goal didn't come. बिल्कुल सारी चीजें बेहतर हुई, लेकिन गोल की जो तलाश थी वो नहीं हो पाई। क्या बेहतरीन मुकाबला। आज का पहला सेमीफाइनल महिला वर्ग का, दोनों टीमें हरियाणा 9 से 10 अंतर्राष्ट्रीय सितारे, और दूसरी तरफ झारखंड बहुत बढ़िया हॉकी खेल रही झारखंड की टीम भी। भले ही 3-0 टेलीविजन स्क्रीन पे आपको देख रहा हो स्कोर, लेकिन ये न्याय नहीं करता हुआ जितना बढ़िया खेला है हॉकी झारखंड ने। पहले क्वार्टर में मिलन क्या बेहतर बॉल पोजीशन, अच्छे ड्रिबलिंग, बेहतर कंट्रोल और अच्छे पासेस, और जिस तरीके से मुंह बनाए थे लग रहा था कि आज हरियाणा को बहुत चुनौती मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आत्मविश्वास, टॉमोहॉक लगाने की कोशिश, इसे बीच आक्रमण। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में जरूर पिछले क्वार्टर्स की जो पहले मोमेंटम लेकर आई थी फर्स्ट क्वार्टर में, वैसी आक्रामक हॉकी की दरकार होगी मिलन झारखंड के लिहाज से। Good point, very good point there, that Jharkhand played a type of hockey which was so gladdening to the heart in the first quarter. They're continuing with that now. Deepika Soreng back. They'll have to make sure that they fall in front as much as possible. But yes, after that scintillating display where they dominated the first quarter, I would really say, although they did concede a goal which came in the 13th minute of play of the first quarter,
they dominated play. But from there on, it was Haryana who picked up everything. We've seen patches of brilliance coming from Jharkhand, but they need to have a consistency in play on the aggression. With Udita, the defender, at the far back. Coming up now, weaving her way through is Jyoti for Haryana. Square pass is this, but missed on that particular occasion. Jyoti once again up to Jharkhand. Get onto the far side. A good cohesive unit. Snatched away, virtually snatched away. But taken away once again by Jharkhand. Through pass, straight. The angle was not there. Through the defense of Haryana. Suddenly Haryana going down. Jharkhand attacking in that danger area. Haryana picking it up there. Trying to stop it is Shilpi Dabas. Waiting to take it away. On this occasion is Nishi Varshi. But look at Jharkhand there. On the prowl. On the prowl. यकीनन तौर पे पिछले 3-4 मिनट के अंदर झारखंड ने जो खेल दिखाया है, इसी निरंतरता को बरकरार रखनी होगी। फिलहाल इसी बीच बैक पास करके गेम की गति को थोड़ा स्लो करना चाहेगी। यहाँ पे हरियाणा स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, वापस से बॉल पोजीशन, लेकिन झारखंड की निरंतर आक्रामक करनी होगी, क्योंकि एक बड़ी टीम है हरियाणा। हरियाणा की टीम में निशा वारशी की आपने जिक्र की, 49 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम की हिस्सा थी। इसके अलावा नवनीत कौर 119 मुकाबले खेल चुकी हैं। नेहा गोयल 115 मुकाबले इंटरनेशनल स्तर पे। ये तमाम खिलाड़ी दर्शाती हुई हरियाणा की टीम की, चाहे रानी रामपाल हो, सविता पूनिया, लेकिन तारीफ झारखंड की भी होनी चाहिए। फिलहाल इसी बीच 17 नंबर की जर्सी में ज्योति इस समय बॉल पे, युवा खिलाड़ी, लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस दिखाया झारखंड ने। आसानी से बॉल क्लियर की और राइट फ्लैंक से देखिए क्या बढ़िया आक्रमण बनाते हुए गति, बेहतर बॉल के पे कंट्रोल, क्या शानदार स्किल, शूटिंग सर्कल के नजदीक। क्या लाजवाब हॉकी खेल रही है टीम, और झारखंड के लिए बहुत अच्छे संकेत मिलन। टीम के हौसले अभी पस्त नहीं हुए हैं। Yes, the class of hockey that we are watching over the last 2 quarters, and with about 4 minutes remaining here in the third quarter, has been very, very high. The intensity on both the teams has been exemplary. Haryana, as Vikas rightly mentioned, will try to slow the pace of the game, but that sometimes can be very dangerous, because when you slow the pace of the game, your opponents can always. This is exactly what Jharkhand has taken advantage of. When Haryana has slowed the pace of the game, they have made sure that they are on the other side, and the longer you're on the other side, as what's happening, this is good, take it, but no. क्या लाजवाब इस समय कोशिश थी, इस बार लेफ्ट फ्लैंक से। बहुत अहम बात कही मिलिंद आपने, कई बार इस समय गेम की पेस को आप स्लो करते हैं, प्रतिद्वंदी टीम उसका एडवांटेज उठा करके कई बार प्रति आक्रमण, लेकिन हरियाणा की टीम के डिफेंस में उदिता दुआ, ये वो नाम है, हिसार की रहने वाली, 70 इंटरनेशनल मुकाबले, 4 गोल, एशियन गेम्स 2018। फिलहाल नजर डालते हैं इस आक्रमण पे। सविता पूनिया, याद कीजिए 2020 टोक्यो ओलंपिक जो 21 में आयोजित हुआ था, भारतीय टीम को पहुंचाने में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो इनका प्रदर्शन था, बहुत लाजवाब, और भारतीय टीम 4th प्लेस अर्जित की थी। झारखंड का आक्रमण इस समय राइट फ्लैंक से, इनके विंगर, इनके मिडफील्डर्स बहुत अहम कार्य कर रहे हैं। तीसरा क्वार्टर, बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल का। बॉल लेकर हरियाणा के लिए 11 नंबर में गगनदीप कौर बॉल बनाते हुए, एक समय समानांतर पास आया, बहुत बढ़िया गोल कीपिंग। सोनल मिंज की खतरा टला भी इस समय झारखंड के। Yes, with under 3 minutes of play remaining here in the third quarter, both Haryana and Jharkhand in particular know very clearly that it's 15 minutes plus 2 minutes, 17 odd minutes of play in the semi-final. All of the good work that they have done in the earlier rounds is going to come to nil if they lose this particular match. Haryana up by 3 goals to nil. A reminder that this is the first of the semi-finals which is being played at the Major Dhyan Chand Hockey Stadium in Rajkot, the 36th National Games.
And after this, the second semi-final in the afternoon session at 3:30 will feature Madhya Pradesh versus Punjab. That should be also a cracker of a match. But for the moment, with under 2 minutes of play remaining, 120 seconds of play, because Jharkhand now has that last chance. Pick up goal number 1, pick up goal number 2, but still 3 goals looks in the far distance. यकीनन तौर पे इस समय 1 या 2 गोल करके तीसरे क्वार्टर की समाप्ति करना चाहेगी टीम, क्योंकि जब भी आप क्वार्टर समाप्त करके जो ब्रेक होता है 2 मिनट का, एक अलग ऊर्जा से, एक अलग स्ट्रैटेजी से। लेकिन देखिए क्या बेहतर स्किल, 17 नंबर की जर्सी में ब्यूटी डुंगडुंग, ये भी बेहतरीन खिलाड़ी है ब्यूटी डुंगडुंग। और क्या शानदार आक्रमण था। ब्यूटी डुंगडुंग जूनियर महिला हॉकी प्लेयर विश्व कप की, सिमडेगा की रहने वाले मिलिंद। We call it brick walling in the sales parlance, and brick walling is so important for Jharkhand at this stage. Twice in the last 3 odd minutes that they have come towards the Haryana goal post with a very big giant, as one would really call, not giant physically, but giant as in the goal there. Well, that's a good attempt, very good attempt, take this! But how quickly in position is Savita there? The important thing for a goalkeeper is to get into position. You know, you got that goal post, but if you're not in the right position, then that goal can just about sneak through, as has happened in the case of Sonal Minj for Jharkhand in the goal, when Rani Rampal has found those gaps at regular intervals to get the ball through. On the other hand, Savita Punya has been at the right place on the goal post to make sure that thrice the ball did not go inside the goal post. यकीनन तौर पे गोलकीपर के लिए पोजीशन उनकी किस तरीके से किस स्थान पे रहना है, ये बहुत अहम बात कही मिलिंद ने। फिलहाल इसे बेचे समय शूटिंग सर्कल के अंदर रिवर्स स्ट्रीक से, लेकिन एंगल ब्लॉक किया था हरियाणा के। बात करें इस समय, देखिए पेनल्टी कॉर्नर मिला झारखंड को। देखिए मिलिंद, जैसे ही आक्रामकता भरी हॉकी खेलती हुई टीम अटैक बनाते हैं मिडफील्ड से, अच्छा बॉल सप्लाई करते फॉरवर्ड के लिए, जैसे ही डिफेंस पे ओवरलोड होगा गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। 18 seconds of play remaining. This is the last chance here in the third quarter. Of course, the fourth quarter remains there. And will Jharkhand be able to take those 18 seconds and convert it into the first goal? This is a good combination. Haryana with 4 in along with the goalkeeper Savita Punya. Stopped well. Oh, she does not take a direct, and once again a very strong Savita Punya in the right position to thwart what would have been, yes, the third quarter out there. Stopped well, not a direct one, squares it on, and Vikas. फिलहाल इस समय बेहतरीन ये वेरिएशन कहते हैं, और संभवतः पहला गोल इस समय मिल गया है। जी हाँ मिलिंद, आखिरी इस समय कुछ सेकंड्स में तीसरे क्वार्टर के झारखंड ने वापसी के बिगुल बजा दिए हैं। क्या लाजवाब गोल किया झारखंड के लिए। ये वो टीम है जो हार नहीं मान सकती, ये वो टीम है लड़ना जानती है। और फिलहाल तीसरे क्वार्टर की समाप्ति की तरफ खेल, और क्या शानदार समाप्ति की तीसरे क्वार्टर के मिलिंद। ये गोल इन्हें संजीवनी का कार्य देगा जब आखिरी क्वार्टर में। क्या कहेंगे आप यहां से? Oh yes, that's the reason why I said 18 seconds to go, and 18 seconds, not one but 2 goals are possible, and they made sure that they got converted that penalty corner. The most important thing in hockey is to convert anything that which comes your way. They have played so well in the last 5 minutes of the third quarter, and they deserved that goal. I think they deserved that goal. So after 3 quarters, it's Haryana 3, Jharkhand 1, and let's have a look at all the 4 goals that have come in this today. The first of them from Rani Rampal. What a figure this is. She is. We've seen her so often here on Doordarshan at regular intervals. Goals, goals and goals is what she likes. यकीनन तौर पर रानी रामपाल पहला गोल किया था उन्होंने फील्ड, उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर, और फिर उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक। देखिए पेनल्टी स्ट्रोक रानी रामपाल का। कोई युवा खिलाड़ी अगर देख रहा हो इस प्रसारण को, ये वो खिलाड़ी। लेकिन पिछला जो गोल था झारखंड के लिए, क्या बेहतर वेरिएशन। पहले सीधा स्ट्रेट उन्होंने ड्रैग न करके
अत्याधुनिक हॉकी के इस कला को, इस आर्ट को दिखाया मिलन। वेरिएशन के सहारे गोल, और तारीफ करनी होगी टीम कॉम्बिनेशन की। संगीता कुमारी ने ये गोल किया। वो संगीता कुमारी अंडर 21 इंडिया के लिए 8 मैच 4 कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल चुकी है। बात करें 4 मुकाबले और इंडिया के लिए 12 मैचों में 3 गोल कर चुकी, वो संगीता कुमारी झारखंड के लिए पहला गोल की है। The word variation is so important in life, not only in hockey. आप कुछ भी variation करो, the life becomes so much interesting from there on, and that's the reason why I said with the way Jharkhand has played out here, they deserved that goal. Even the strong Savita Punya was caught napping, and instead of the direct hit, which normally teams do take in a penalty corner, they had that variation that you described about. Now into the fourth and the final quarter with Navneet Kaur, Jharkhand now look a very determined side. There they are with Salima Tete, the two sisters. This is the danger. Oh, missed one. What a story this would have been if they had got that second goal. यकीनन तौर पे क्या बेहतरीन आक्रमण देखने को मिला इस समय। ये वो झारखंड की टीम है जुनून जज्बा से खेलती हुई, और झारखंड की टीम दर्शा रही है टीम के लिए। सालिमा टेटे, दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे, जो इन्होंने 2 टेटे की बात की आपने, दोनों बहनें हैं। और वाल्मीकि ब्रदर्स हम अब हाल ही में देखेंगे मेंस का फाइनल से पूर्व सेमीफाइनल में महाराष्ट्र के लिए युवराज देवेंद्र वाल्मीकि और यहाँ महिमा टेटे और सलीमा टेटे। क्या बेहतर हॉकी और एक परिवार से प्रतिनिधित्व करना गौरव की बात मिलिंद। 14 minutes of play remaining. That's the attack that Haryana are looking forward to at the end of those 2 minutes here after 3 quarters. What did the two coaches, Meenakshi and Bigan Soy, told their team out there? Jharkhand starting off well out here in the 4th quarter. Look at them going on. Oh, slam there. Slam there. क्या लाजवाब गोल इस समय, बिल्कुल क्या शानदार तरीके से पलक झपकते ये झारखंड की बेटियों की तेवर है। वापसी के संकेत नजर डालिए। लाजवाब तरीके से 5 नंबर में सालिमा टेटे, ये वो नाम है झारखंड की हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के लिए भी 65 मुकाबले खेले, 6 गोल किए कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स, और वो सालिमा ने झारखंड को नई वापसी की किरण दे दी है। This match is not over, friends. This match is not over. 3-2. Jharkhand, what a side. I'm sure the whole of India is watching this telecast, and what a joy this is. Remember yesterday in that men's match, which was very close, likewise out here. If you get hockey of this nature, Vikas, then I think hockey will be picked up by youngsters all over the nation. And when you're two sides, remember Haryana and Jharkhand, where Haryana, of course, the proximity to Delhi gives them the advantage of some big hockey that they can play. But Jharkhand, with Ranchi, the capital, and then with district like Simdiga, Kunti, with villages like Karnagudi, where they don't even have AstroTurf, they don't even have turf. They play on mud. And from there, these players are springing up. How good they have done here to come to 3-2. कितना फर्क है? What's the difference between 3-2 and 3-0? यकीनन तौर पे बहुत अहम बात कही आपने। हरियाणा की टीम के खिलाफ जिस तरीके से झारखंड, जहां सुविधाओं का अभाव है, एस्ट्रोटर्फ की कमी है, उन इलाकों से निकली ये खिलाड़ी इस समय झारखंड की बहुत अहम चुनौती दे रही है। सालिमा टेटे, संगीता कुमारी, ये वो खिलाड़ी देखिए थ्रू पास, कितना बेहतर बॉल कंट्रोल, अच्छी ड्रिबलिंग। ये वो टीम के खिलाफ जिसमें हरियाणा की लगभग 11 में से 9 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, और वो खिलाड़ियों के खिलाफ इस स्ट्रैटेजी, इस मानसिकता, इंटेंट के साथ खेलना दर्शाता है कि आपके पास भले ही सुविधाओं का अभाव हो, लेकिन प्रतिभा और आपकी मानसिकता तय करती है सफलता के दरवाजे। It's a pity that one side will have to get out of this particular match. They'll have to bow out, to use the right word, outside this match. Sadly, this is a knockout punch that either Haryana or Jharkhand will have to take. One will go home, one will go into the finals. Question is, who is it going to be? Jharkhand will have to make sure that they do not allow this to happen. Jharkhand will have to make sure that they do not allow Haryana
to get into their quarter, their striking distance. And if this is what happens for Jharkhand, then perhaps their goalkeeper Sonal Minj will have to raise the level of the game. यकीनन तौर पे झारखंड इस तरीके की गलतियां करना नहीं चाहेगी। सोनल मिंज गुमला की रहने वाली। बात करें इंडियन हॉकी टीम के लिए कैंप कर चुकी, जूनियर इंडिया खेल चुकी। फिलहाल इस समय ज्योति इस समय बॉल को इंजेक्ट करने के लिए। बहुत बड़ा मुकाबला। देखिए स्कोर लाइन सेमीफाइनल का 3-2 हरियाणा एक गोल के पक्ष में। और फिलहाल इस समय पेनल्टी कॉर्नर को संभवतः कन्वर्ट किया है मिलन गोल के रूप में। एक और गोल इस समय हरियाणा के लिए। चेहरे की भाव भंगिमाएं देखते हैं फिलहाल रिप्ले में। स्टॉपर ने स्टॉप किया और क्या शानदार तेज गति से 150-160 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रैक था रानी रामपाल का। Yes, that's the reason why I said this is the danger time for Jharkhand between the two players, the goalkeeper and in defense, which was Mahima Tete, and that was a body blow which came the Jharkhand way. So goal number 4 for Haryana and goal number 4 for Rani Rampal, up now by 4-2. Wonderful play there by Haryana. How quickly they came back after they conceded goal number 2 to Jharkhand. It is Nisha Warsi on the far side, and that's the reason why I said, because that Sonal Minj will have to raise the level of the game and the defense will have to be so strong. It wasn't strong and allowed Rani Rampal to slam goal number 4 for Haryana. रानी रामपाल जैसे खिलाड़ी को अगर आप डिफेंस सुदृढ़ नहीं करेंगे, इससे पूर्व रानी रामपाल 12 फील्ड गोल की थी और आज 4 गोल जो तस्वीरों में टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हरियाणा के लिए, चारों ही गोल रानी रामपाल ने। रानी रामपाल शाहबाद हॉकी का गढ़ है हरियाणा में, वहां से आती हैं। 250 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुकी हैं, लंबे समय से महिला हॉकी में भारत की एक पहचान बन चुकी। और वहां पे मिलन बहुत अहम बात कही आपने, डिफेंस को अब मजबूत करना होगा। अभी भी वापसी हो सकती है आखिरी क्वार्टर के सेमीफाइनल में। 9 मिनट 40 सेकंड बहुत वक्त है हॉकी जैसे मुकाबले में। मिलन देखिए आक्रमण बनाती हुई। Not giving up is Jharkhand, but taking the ball away from them at the right time is Gagandeep Kaur for Haryana. On to the Jharkhand half, get back into the Haryana half is going to be the mantra for Jharkhand. It's extremely important for Jharkhand to make sure that they get together. No individual games from here on. There have been patches where each of them has really gone through. Rani Rampal on the far side. That's the dangerous girl that we know her to be. Capable of doing everything on her own. Look at her, all on her own. Doesn't really make a difference for her. Monica waiting to catch the one from Rani Rampal. Get goal number 3 for Jharkhand is, I'm sure, what the sparse spectators. And because what I would have loved is a bigger crowd out here in Rajkot. This is a semi-final. This is a big match. You don't get such opportunities at regular intervals. You don't know when the next big hockey match is going to be played here. You know, the semi-final of the women's, the semi-final of the men's. Come here, watch some good hockey, learn the game and pick up the game. यकीनन तौर पे इतना बड़ा आयोजन 36वें नेशनल खेल का सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला और आज सुपर संडे भी है। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या में दर्शक आएं और यहां से बहुत कुछ सीख करके जाएं। भारत की हॉकी में स्वर्णिम इतिहास रहा है और बड़ी गौरव की बात है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेज़बानी गुजरात शहर को मिली है और गुजरात के अलग अलग शहर फिलहाल राजकोट में हॉकी के मुकाबले। और बिल्कुल सही फरमाया मिलिंद आपने, बड़ी संख्या में आकर दर्शक इस मुकाबलों से बहुत कुछ हॉकी में अपना योगदान दे सकते हैं। फिलहाल शूटिंग सर्कल के अंदर हरियाणा का आक्रमण, लेकिन बहुत बढ़िया डिफेंस इस बार। अब एक्सेलरेटर पे पांव रखना होगा झारखंड के लिए बचे हुए लगभग 7.5 मिनट में। देखिए क्या बढ़िया स्किल, ब्यूटी डुंग डुंग इस टीम की जूनियर इंडिया खेल चुकी, लेकिन ये गलती हो रही मिलन, बॉल पोजीशन नहीं खोना होगा वरना जो उम्मीदें हैं वो छीड़ हो जाएगी। The time now for the Jharkhand defense also to be in an attacking mode.
Hockey has changed. No longer are the positions spoken about. Even the defenders move up there. This is the way they'll have to continue to do. Good pass there, but not a player for Jharkhand. All by herself. Get 2, 3, 4. And ask for the penalty corner. Get the penalty corner. Seize it. Get goal number 3. Haryana now with their defense of Monica along with Savita Punya and Nisha Varsi will be tested. Big time for Jharkhand. If they get this goal through the push by Deepika Sorang, who has done well in the first 2 occasions. That's Deepika Sorang there. Will they do the variation or will it take the straight one or the straight route? यकीनन तौर पे क्या वेरिएशन के लिए जाएंगे या फिर सीधा ट्रैक करेंगे। सविता पूनिया को बीट करना बहुत मुश्किल होगा। दीपिका सोरेन बॉल को पुश की, ट्रैक किया, सविता ने डाइव किए और खतरे को टाल दिया हरियाणा के लिए। लेकिन ये बहुत अहम अटैक था। गोल पोस्ट के अंदर उदिता दुआ, निशा वारसी, बहुत अहम कोशिश। नजर डालते हैं इस रिप्ले पे। पहले स्टॉपर ने स्टॉप किए, तेज तर्रार ट्रैक था। ओ डिफ्लेक्शन अगर आ जाती यहाँ पे मिलन तो शायद ये गोल हो जाता। Monica there with her stick coming in the way, stopping what could have been goal number 3. Substitution there for Jharkhand. No, that's on the far side, the flank. Last 6 minutes of play out here in this, the 4th quarter, the first semi-final between Haryana and Jharkhand. Although we are coming to the end of this particular match, 5 minutes and 57 seconds. I still remember Haryana versus Gujarat, 30 goals to 1. That was a huge match to start off for Haryana. 5 precious minutes, or 5.5 precious minutes for Jharkhand. Who will go down the wire towards the end? This is what Jharkhand will have to continue to keep on doing. Be there in that part of the area. Don't go to the other part. Don't allow Haryana to go there. यकीनन तौर पे मिलिंद ज्यादा से ज्यादा इस समय प्रतिद्वंदी टीम के शूटिंग सर्कल और 5 मीटर रेखा के पास इस समय डॉटेड लाइन में, लेकिन वापस से बहुत बढ़िया इस समय बचा मोनिका मलिक। ये वो नाम है लंबे समय से भारतीय हॉकी में। मोनिका मलिक ने गेंद को इस समय क्लियर किया और एक बार फिर से बॉल चली गई बैकलाइन से बाहर। फ्री हिट मिलेगा झारखंड को। बचे हुए आखिरी 5 मिनट में ये मुकाबले की सेमीफाइनल की राह सुनिश्चित होगी कि फाइनल में कौन जाएगा, और फाइनल में जाएंगे मिलन तो वहां से मेडल पक्का होगा। फिलहाल इसी बीच 7 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी बेहतरीन स्किल दिखाती हुई शर्मिला देवी, इंटरनेशनल प्लेयर, लेकिन इस बार गोल पोस्ट के अंदर नहीं डाल सकी। Yes, missing what was a sitter because Sonal Minj on the far right corner of the goal post, virtually 3/4 of the goal was open out there for Sharmila Devi to slam it in, but wasn't to be. Haryana leading by 4 goals to 2 here with 4 minutes of play remaining here in the 4th and the final quarter of this, the first semi-final between Haryana and Jharkhand. Super match on a super Sunday, because as we've been saying out here, the clock, the official clock shows 4 minutes and 7 seconds remaining. So in that 4 minutes and 7 seconds, Jharkhand has to equalize. After that, it could be anyone's game. पहले बराबरी करना चाहेगी झारखंड की टीम। बिल्कुल बेहतर फरमाया आपने। वो गति, वो बेहतर स्किल, बॉल कंट्रोल, हरियाणा के खिलाड़ी अपना संपूर्ण समर्पण देती हुई। नवनीत कौर इस टीम के एक और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, नवनीत कौर थी वहां पे। 119 इंटरनेशनल मुकाबले। Remember the other point that we should be talking about as we watch Jharkhand attacking well, is that the Haryana girls are so strong. Big shoulders, strong legs, and look at Jharkhand there. Wily people, short people, but how strong they have been in the field. कहते हैं मिलन कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। यकीनन तौर पे देखिए इस समय बिल्कुल अहम बात है, फिजिकली जिस तरीके से हरियाणा की टीम काफ़ी मजबूत है शारीरिक तौर पे, लेकिन उससे मुकाबला करती हुई जज्बे से, जोश से, प्रतिबद्धता से, और फिलहाल यहाँ से ये अच्छे संकेत झारखंड के लिए नहीं मिले। पेनल्टी कॉर्नर मिला हरियाणा को। In English we use a word called belief, self-belief.
and I think Jharkhand has gone into this match with self-belief. I'm not even going to talk of who's going to win this particular match with close to 3 minutes to go, while Haryana has got that important penalty corner. But the self-belief in Jharkhand tells this nation that have the self-belief, everything is possible. यकीनन तौर पे खुद पे विश्वास सफलता के लिए बहुत अहम। फिलहाल इस पेनल्टी कॉर्नर पे नजर डालते हैं। मैच ऑफिशियल्स के विसिल बता दें आज के मुकाबले की अंपायर दुर्गा देवी और केटी लाल हिमपुली, जो कि मिजोरम की वापस से पेनल्टी कॉर्नर लेंगी, क्योंकि जो रूल है हॉकी का, जब तक बॉल वहां से इंजेक्ट न की जाए तब तक कोई भी डिफेंडर गोलकीपर के अलावा अंदर पहले नहीं आ सकते। खतरा टल गया है इस समय झारखंड के लिए। सोनल मिंज जूनियर इंडिया खेल चुकी गोलकीपर, लेकिन ये सेमीफाइनल हॉकी का लंबे समय तक आपको याद रखा जाएगा। नेशनल गेम का सेमीफाइनल हरियाणा वर्सेस बात करें झारखंड। इस पेनल्टी कॉर्नर बहुत बढ़िया बचाव, क्या कहने सोनल मिंज की। मिलन क्या कहेंगे इस बचाव को? Yes, that was brilliant. It's sad, it's a pity if Jharkhand go on to lose this match. And they've scored now, have they? Or they have, yes. All happened in a question after that save. After that save, Haryana came back again so quickly. It all happened in a fraction of a second. Watch this closely now. That's first save came, and then onto the far corner with Rani Rampal once again seizing the ball. एक बार फिर रानी रामपाल की चपलता, बिजली की गति, वो तेजी, वो फुर्ती। पांचवा गोल और पांचों ही गोल रानी रामपाल। इस खिलाड़ी को आप मार्क कर लीजिए। स्पोर्ट्स में एक शब्द है, इनके खिलाफ अलग से रणनीति की दरकार थी, वरना जितना बेहतर भले ही मुकाबला टीम हरियाणा से बराबरी की हो, लेकिन रानी रामपाल से हारी है। मैं यहां तक अभी तक के संकेत इस बात के, बहुत अच्छा खेले झारखंड ने। अभी भी मुकाबले में 1 मिनट 40 सेकंड रानी रामपाल को चुनौती देना बहुत मुश्किल। She has impressed us not only in this match, but she's impressed hockey lovers in the last 10 odd years that we've been seeing here at the women's hockey. Ball now with Gagandeep Kaur. The dying minutes of the fourth quarter, or the dying minutes of this match, because I don't think Jharkhand from here on can now pull anything out of the bag. If they do manage to do that, then it will be a miracle, as one would say. But what I like is they're not giving up. 1 minute, under 1 minute to go, and they're making sure that they are there in the Haryana danger zone to pick up goal number 3. But what a match this has turned out to be for Jharkhand. Full marks to them. They have not been bothered. 7 internationals, 8 internationals, 9 internationals. You can keep on talking of the names of Rani Rampal, the goalkeeper, Savita Punya, and some of the others. But Jharkhand have said, we will go there and play our own wonderful game. यकीनन तौर पे कभी उन्होंने बड़े स्टार्स पे ध्यान नहीं दिए, खुद के खेल पे और बेहतर कौशल दिखाए। मुकाबले में चौथे क्वार्टर फाइनल की बात करें इस समय, चौथे क्वार्टर की समाप्ति की तरफ, बड़ा सेमीफाइनल का मुकाबला। हरियाणा लगातार तीसरी बार नेशनल गेम में फाइनल में पहुंचेगा। 34वें, 35वें और ये 36वें नेशनल गेम। पिछले दोनों नेशनल गेम में से 34वें में गोल्ड मेडल जीता था हरियाणा ने, 35वें में पंजाब से हारे थे, लेकिन यहाँ फिर फाइनल के दरवाजे में पहुंचने के नजदीक। चौथे क्वार्टर की समाप्ति मिलन। Yes, Haryana there becomes the first team to get into the final of the national games, winning and beating Jharkhand by 5 goals to 2 in a pulsating match right up to the wire. Rani Rampal, of course, the star out here, and that's the scoreline at full time. Haryana 5, Jharkhand 2. यकीनन तौर पे ये फिलहाल स्कोर लाइन और अभी तक के जो गोल हुए, देखिए रानी रामपाल, ये वो खिलाड़ी, भारतीय टीम की पूर्व कप्तान, क्या गजब की स्किल, बिजली की गति। और नजर डालते हैं इस समय दूसरे पेनल्टी कॉर्नर पे जो मिला था, तेज गति से गोलकीपर सोनल मिंज के दोनों, और ये पेनल्टी स्ट्रोक मिलन बहुत लाजवाब तरीके से रानी रामपाल, जो नाम और ख्याति उसके अनुरूप, और ये गोल देखने लायक था। संगीता कुमारी के वेरिएशन देखिए, और कितना बेहतर वेरिएशन से गोल मिलन। आपके शब्द जानना चाहूंगा। Oh, yes, absolutely. There was no place there.
and yet she got that goal, and including this one, the second of them which they got. But it was Rani Rampal's day today. She was there everywhere. She was there in the field, in her own half. She was there on the other half, and she was there to score the goals as well. यकीनन तौर पे आज का दिन रानी रामपाल के नाम रहा। यहाँ से हम बताते हुए कि पहला सेमीफाइनल जिस तरीके से हरियाणा ने झारखंड को शिकस्त दी है 5-2 से, लेकिन क्या बेहतरीन हॉकी देखने को मिली। भले हरियाणा फाइनल में हो, झारखंड ने दिल जीता है। So with the news that Haryana has made it to the final of the women's hockey in the 36th national games, beating Jharkhand by 5 goals to 2. We will have plenty of action in the afternoon session when the second semi-final will be played between Madhya Pradesh and Punjab. We'll be back again for live action at 3:30 p.m. on a wonderful Sunday afternoon. Don't take a nap, don't go to sleep, but come to watch some pulsating hockey. From all of us out here at the Major Dhyan Chand Hockey Stadium in Rajkot for the 36th National Games, it's back to the studios in Delhi.